ಸರ್ ಸರ್ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬಾಳಿಸ್ಬೇಕು. ಖಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈದಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಬೋರಾಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮುದ್ದಾಮ್ ಕರೆಸಿದ್ದಿದೆ. ಅವರು ಈಗ 8 ದಿವಸದ ಬೆಳಗಾಂ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 15 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಬೋರಾಡೆ ಎಂಬಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಬಂದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಗೋಯರ್ ಇವರು ಬಂದ್ದಾರೆ. ಇವರು 3 ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಸಂಗೀತನಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮದು ಅವಿಷನು ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದೊಂದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೌನ್ ತಾಸರ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರೇಸ್ ಇರುತ್ತಿದೆ. ಆ ಟ್ರೇಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತಾರೋ, ಲಿಂಬು ಸೋಡಾ ತೊಗೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತಾರೋ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಂತ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನಮಗೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೌನ್ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಕೊಡು ಸಲುವಾಗಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುರುಂದೊಡೆ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದಂ ಪರಮ ಸುಖದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ತತ್ವಮತ್ಸಾದಿಲಕ್ಷ್ಯಂ ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲಮಚಲಂ ಸರ್ವಧಿ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತಂ ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರು तं नमामि। मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? गिटार जन्म कर्म निवारणं ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे श्री गुरु पादोदकं पिबेत्। दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए साँझ फिर बदन चुराए चुपके से। गिटार थोड़ा देना मॉडल में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे शहनाइयाँ सी राहों में सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, चौदहवीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चाँद हो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छलकारी तुम आ जाओ जीवन में, सांसें लेकर अपनी संगीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ಕಣ್ಣೀರ ಅಭಿಷೇಕ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ನರನಾಳದ ಮಂತ್ರಿದೆ ತುಂಬಿದೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಅಭಿಷೇಕ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ಕರುನಾಳದ ಮಂತ್ರಿದೆ ತುಂಬಿದೆ, ನಿರ್ಯೈವ ಮಣಿಯಲ್ಲ ಹುಳಿಯಾಗಲಿ, ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ವನ್ನದ ನಯನ ಪವನ ಚರಣ, ವನ್ನದ ನಯನ ಪವನ ಚರಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ। एक गाना कन्नड़ का गा लिया आप, तुमको तालियां करें। बात यह है कि जब आप ये तालियां ठोकते हैं ना, तालियां कब बजाते हैं? जब अंदर तक कुछ चीज टच हो जाए। किसी पेशेंट को आप कहोगे कि तालियां बजाओ, तो क्या वो बजाएगा? नहीं बजाएगा। क्यों? क्योंकि तालियां बजाने के लिए कुछ अंदर हार्मोनल चेंजेस होने चाहिए। हाँ, हंसने के लिए जो ऐसा होना चाहिए जो अंदर के हार्मोनल चेंजेस को कर दे। तो हम खुश होने के लिए अगर सिर्फ मोटिवेट करेंगे तुमको यार खुश रहो, क्या खुश रह सकते हैं? अंदर जब तक हार्मोनल चेंजेस नहीं होते तब तक खुशियां आएगी नहीं। अब यहाँ पे ना हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके अंदर के हार्मोनल चेंजेस करने के लिए संगीत का इस्तेमाल हो सकता है। मैं हूँ डॉक्टर संतोष बोराडे और मेरा रिसर्च का सब्जेक्ट है cardiovascular system, psychosomatic disorders and complementary and alternative medicines। आप जरा याद करके देखिए, जब बचपन में आपको खेलने के लिए जाना पड़ता था बाहर घर के, तो क्या होता था?
अब पापा हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, मम्मी क्या करेगी, क्या रिप्लाई करेगी, इसके लिए अंदर ही अंदर हम खुद को कुदेते रहते थे कि भाई क्या करूँ, पूछूं ना पूछूं, पूछूं ना पूछूं, या फिर होमवर्क नहीं करते थे और स्कूल में जाते थे तो अंदर ही अंदर कुछ चलते रहता था। बचपन के जमाने में क्या होता था, सुबह क्या हुआ वो शाम तक भूल जाते थे, तो हमारी ये जो हार्मोनल बॉडी है वो फिर से नॉर्मल हो जाती थी। अभी क्या होता है, 10 दिन पहले क्या हुआ था वो भी बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है, पिछले साल क्या हुआ था वो भी बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है। आपकी हार्मोनल बॉडी नॉर्मलाइज होती ही नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, उसको पॉज करने के लिए यहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे, ये तो एक आसान हो गई, या फिर ये हो गई, या फिर ये हो गई, ये सब चीजें आपके लिए दवाई है, ये बिल्कुल जहर नहीं है। जब वो अति मात्रा में आप सेवन करते हो तो उसका जहर बनने लगता है। यहाँ पे चल रही है बात कि आप ये जो चीजें कर रहे हो ये विद साइड इफेक्ट आपको परेशान भी करती है और आपको थोड़ी सी मदद भी करती है। संगीत एक ऐसा जरिया है जो आपको मदद तो करता है लेकिन उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप मुझे बताइए, जब मैं वो गाना का पढ़ो श्री सत्यनारायण गा रहा था तो आपके अंदर वो खुशियां उमड़ उमड़ कर आ रही थी? मैंने अगर शुरू कर दिया ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಳ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತಾ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಳೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜಿಗೆ ಒಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣ ಎಂತ ಸೌभाग्ಯದ लक्ष्मी। देखिए आप एक दूसरे के चेहरे देखिए जरा, हार्मोनल चेंजेस आपके डेस्कटॉप पर दिखाई देने लगे हैं। ये कौन कौन से हार्मोन्स है? एंडोर्फिन, एनकैफिलिन, सीरोटोनिन, डोपामाइन। ये हार्मोन्स लाने के लिए एक तो दवाइयाँ खाओ या फिर म्यूजिक के जैसी जो चीजें हैं, संगीत, साहित्य आदि कलाओं का इस्तेमाल करो। क्या लगता है आपको, दवाइयाँ खाकर या फिर सिर्फ शराब पीकर ही हम हार्मोनल चेंजेस करते रहेंगे या फिर संगीत जैसी कलाओं का भी इस्तेमाल करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कैसे करना है मैं आधे घंटे में आपको सिखा दूंगा। जरूरी बात यह है कि आप करना चाहते हो कि नहीं। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, दिलीप सर मुझे थोड़ी सी हेल्प करेंगे क्या प्लीज? ना ना ना, हमें कोई एक्चुअल सर ना कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए, ना नोटबुक ना कुछ भी, जितना आएगा उतना गाइए, जैसे आएगा वैसे गाइए। कन्नड़ गुरु वचन या भजन सुनना पसंद करेंगे ना आप? हाँ, बाकी की सब चीजें भी होगी, थोड़ी मस्ती भी करेंगे, लेकिन भजन से शुरुआत करते हैं। ಮೇಲಾಗಲೊಲ್ಲೇನೋ ಕೀಳಾಗಿರುವೇನೋ, ಮೇಲಾಗಲೊಲ್ಲೇನೋ ಕೀಳಾಗಿರುವೇನೋ, ಕೀಳಿಂದ ಕರೆಯೋದು ಹಾಲು. ಮೇಲಾಗಲೊಲ್ಲೇನೋ ಕೀಳಾಗಿರುವೇನೋ, ಮೇಲಾಗಲೊಲ್ಲೇನೋ ಕೀಳಾಗಿರುವೇನೋ, ಕೀಳಿಂದ ಕರೆಯೋದು ಹಾಲು, ಕೀಳಿಂದ ಕರೆಯೋದು ಹಾಲು.
मीनिंग था इसका? ಈ ಒಂದು मराठी या फिर हिंदी इंग्लिश कुछ तो हिंदी चाहिए। हिंदी या फिर इंग्लिश। मुझे एक्चुअल मीनिंग उनको तो समझ में आया होगा ना क्या मीनिंग था इसका? हाँ एक ऐसा गीत है, कभी भी मैं बड़ा बनना नहीं चाहता, छोटा रह के सब कुछ काम करूंगा, छोटे में जो मजा है वो बड़े में नहीं है। क्या बात है। सर मुझे आप लोग बताइए कि ये जब गा रहे थे तो क्या आप उनके शब्दों के ऊपर उनके वो जो मीनिंग बता रहे उसके ऊपर आपका ध्यान था या नहीं था? कंसंट्रेशन हो रहा था यहाँ पे कि ध्यान बाहर यहाँ वहाँ कहीं पे भटक रहा था? अरे यार वो भी न्यूज़ कलेक्ट करनी है और उस एमएलए को फोन करना है और वो साला वो दारू का दुकान कल खोल के बैठा था वो ड्राइडे पे, तो उसको भी थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं दिमाग में चल रहा है ना? ये सब दिमाग के विचार वैनिश क्यों हो गए आपके? वो 2 ही लाइनें गा रहे थे और वो रिपीट कर रहे थे और आप लोग हैं कि वो आगे क्या गा रहे हैं, वो कैसे सुर में गा रहे हैं, ठीक से गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं, कहीं पे गलत आ रहा है क्या, वो पकावत क्या, ये सभी चीजें सभी एक्सरसाइजेस आपका दिमाग उस 2 मिनट में कर रहा था। जो 2 मिनट के एक्सरसाइज के लिए हम लोग 10-10 हजार रुपए चार्ज करते हैं, आपके मेडिटेशन के कोर्सेज करवाते हैं, वो चीज अगर फ्री में हो रही है 2 मिनट में, क्या लगता है आपको 10,000 का कोर्स करना चाहिए या 2 मिनट का गाना गाना चाहिए? लेकिन फिर आप में से कौन आएगा सामने गाने के लिए, बताइए जरा मुझे। साइकोलॉजी कहती है कि हमें आता तो बहुत है लेकिन हम उसको खुद के लिए यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे उम्र से बढ़ने लगते हैं, हम जैसे जैसे चेयर से बढ़ने लगते हैं, जैसे जैसे ईगो से बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे आस पड़ोस में दीवारें बांध देते हैं, शर्म की, हया की, डर की, लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी, और मुझे ये शोभा नहीं देगा, और मेरा ये एटीट्यूड है, मेरा ये स्वभाव है। ऐसी एक तो नहीं हजारों दीवारें हम आजू बाजू में बांध देते हैं। आप सोचिए जरा, अगर हमारी पर्सनैलिटी को ऐसी दीवारों में हम लोगों ने कैद कर दिया तो क्या हम खुशियां पा सकते हैं? अगर खुशियां नहीं पाएंगे तो सेहत पा सकते हो? जरूरी है कि हम लोगों ने इस दीवार के परे आने की कोशिश करनी चाहिए, जो जन्म लेते लेते हम लोगों ने की थी ट्राई। सब लोग जन्म लेने के लिए इसी अवस्था में आए थे ना, गा रहे थे ना, कि कोई म्यूट में आया? सभी लोग गा रहे थे सर। तो ये कुदरत ने सिखाई हुई हमारी कला है। हम सिर्फ एक कन्नड़ एंथम है, आपके पास कोई कन्नड़ एंथम है कर्नाटक का, हम सब लोग मिलके गाएंगे। नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको गाना नहीं आता, मैं आपको एक मदद कर देता हूँ, मेरे पीछे सिर्फ इतना गाइए, सारे ग रे मा ग रे ग रे ग मा ग रे मा ग सा मा ग रे ग मा प धा प मा ग रे मा ग सारे सानी रे गरे रे मा गरे गरे नी रे सा। कैसे लग रहा है ये? अच्छा लगने के लिए एक तो पैसे दो दवाइयों के लिए, या फिर गाओ, क्या आसान है। आप बोल रहे सर वो आपने गाया ना इसके लिए, तो फिर मैं गा रहा हूँ और मैं आपको मदद कर रहा हूँ, तो आपको अगर खुशियां मिल रही है तो डॉक्टर से दोस्ती कर लो ना भाई। डॉक्टर खेलोगे तो पैसे पड़ेंगे। आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी बीमारियां होती है उसमें 92% बीमारियां साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। क्या? मनोकायिक व्याधि, जिसमें सर्दी, बुखार, खांसी से लेकर हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पैरालिसिस, एड्स, कैंसर, सभी बीमारियां अगर साइकोसोमैटिक है, मनोकायिक है, तो इलाज किसको देने चाहिए? शरीर को या दिमाग को? आप किसी डॉक्टर के पास चले जाते हो जब ना, अभी कुरुंदकर सर के ऑफिस में मैंने नहीं देखी वो बात, अगर डॉक्टर के पास चले जाते हो तो रिसेप्शन में देखिए बाहर एक लड़की बिठाई रहती है,
कोई आंटी काली झाड़ी वाली आंटी बिठाते हैं बाहर कि अच्छी दिखने वाली, एकदम गोरी चिट्ठी, अच्छा लिपस्टिक लगाने वाली ही लड़की बाहर बिठाई जाती है। आप किसी भी अस्पताल में जाइए और वहां पे जाके चेक कीजिए, सबसे ज्यादा पैसा किन चीजों पे खर्च होता है? पेशेंट के शरीर के ऊपर या हॉस्पिटल के सेटअप के ऊपर? क्यों? और वो लड़की भी ना, जब आप जाते ना, मुझे अंकल क्या हो रहा है आपको? अंकल पहले आधे ठीक वहीं पे हो जाते हैं। जरा बचपन वाला डॉक्टर याद कीजिए, हम बोलते यार वो हमारा डॉक्टर है ना, उसके पास जाते हैं, वो गणेश अन्ना के वहाँ पे वो डॉक्टर है ना, उसके पास जाते हैं, साला दिमाग चाटते रहता है, दुनिया भर की बातें करते रहता है। कहाँ से आया, कौन से गांव से, मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, दुनिया भर के सवाल। दवाई ववाई कुछ नहीं, ना टेस्ट ना रिपोर्ट। लेकिन साहब एक बात बताऊं, उनका हाथ वो लग जाए ना, एक बार नाड़ी परीक्षा के लिए ले जाए ना, तो आधी बीमारी वहीं पे ठीक हो जाती है। उनकी स्माइल देख के ही आधा आदमी ठीक हो जाता है। ऐसे डॉक्टर्स आपने देखे कि नहीं देखे हैं? क्या जादू थी उनके पास? उनके शब्दों में ताकत थी आपके हार्मोनल चेंजेस करने की, उनके स्पर्श में ताकत थी आपके हार्मोनल चेंजेस करने की। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। और ये किसी भी ट्रीटमेंट में कितना काम करते हैं? 92%। तो हमें सेहत पाने के लिए खुश रहना जरूरी है कि पैसे कमाना? ओके चलो, पैसे कमाने का अगर दिमाग में होगा तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अब समझिए कि आपके पास 200 करोड़ रुपए है, इतने तो होंगे ना आपके पास? चलिए 250 करोड़ है, ठीक है? ओके, 250 करोड़ में कितने लोगों को लगता है कि आप सेहत खरीद सकते हो? 300 करोड़ में, 500 करोड़ में क्या सेहत खरीद सकते हैं? तो सेहत अगर खरीद नहीं सकते तो फिर डॉक्टर के पास क्या लेके जाते हो? धूप, अगरबत्ती, नारियल, क्या लेके जाते हो डॉक्टर के पास? पैसे। जब आपके पैसे खत्म हो जाए तो डॉक्टर के पास जाइए और बोलिए डॉक्टर साहब सब पैसे खत्म हो गए आपकी ट्रीटमेंट लेते लेते, अभी फ्री में इलाज करवाइए। क्या डॉक्टर गोद लेंगे आपको? याद रखिए, अगर डॉक्टर आपको बचा पाते तो डॉक्टर खुद हार्ट अटैक से नहीं मरते। हम भी इंसान हैं, हमारे भी लिमिटेशंस है, हम तो सिर्फ मदद करते हैं कुदरत की और आपकी। अगर आप ही खुद को मदद नहीं करेंगे तो हम कैसे आपको मदद कर सकते हैं? दुनिया की कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी ऑपरेशन भी अगर करना हो तो पेशेंट का दिमाग खुश होना, स्टेबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए, सुबह से लेकर शाम तक जो भी 12-16 घंटे आप काम करते हैं, उसमें आपका दिमाग नॉर्मल रहता है या इमरजेंसी होता है? नॉर्मल कब रहेगा? जब सभी काम टाइम पे होंगे। 11:30 बजे आपके पेट में आपका जो एसिड है, पित्त है, वो आना शुरू हो जाएगा और आपका दिमाग बोलने लगेगा कि अभी खाना हजम करने की बारी शुरू हो गई। तो कितने लोग आप में से 11 बजे खाना खाते हैं? 11 बजे खाना खाएंगे तो वो एसिड को कुछ खाने को मिलेगा ना? नहीं मिलेगा खाने को, तो वो एसिड ऐसे ही पड़ा रहेगा और एसिड की एसिडिटी बनेगी और एसिडिटी के लिए दवाइयां खानी पड़ेगी। इंसान को जीने के लिए मुट्ठी भर खाना इनफ है। अगर आपने उस एसिड को कुछ खाने के लिए दे दिया तो वह एसिड के एसिडिटी नहीं बनेगी। क्या आप मुट्ठी भर खाना हर रोज खुद को खिला सकते हैं? उसके बाद चाहे जितना खा लीजिए, कितने भी बजे खा लीजिए, लेकिन 11 से 11:30 के बीच में क्या आप मुट्ठी भर कुछ खा सकते हैं? ये आसान चीजें हैं, इजी चीजें हैं। आपने देखा होगा बचपन में वो हमारी दादी माँ बैठती थी घर में, ऐसे चक्की लेके, देखिए नहीं देखी है? वैसे बैठती थी, एक पैर पास लेके दूसरा पैर दूर रख के और चक्की पीसने शुरू कर देती थी और उस टाइम पे गाने गाती थी, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ऐसे गाने गाती थी, है ना? चक्की पीसने के गाने अलग होते थे। कन्नड़ में कोई आता है किसी को गाना? हमारे यहाँ पे मराठी में, हिंदी में गाते, सुंदर माझे जाते गे फिरे बहुते के गे ओव्या गाऊ कौतुके तू ये रबा विठला, अभी सांस छूट जाती थी। यही चीज अगर मेरे डॉक्टर मेरे हॉस्पिटल में आके आप करेंगे ना तो मैं उसको कहूंगा जानू शिरा।
इस आसन में बैठने के बाद पैर की सिफाइनस वेन कंप्रेस होती है, दूसरी वाली स्ट्रेच हो जाती है, फिर ज्यादा से ज्यादा खून हार्ट की तरफ बढ़ने लगता है, आपकी हार्ट की पंपिंग पावर बढ़ने लगती है और आप हार्ट अटैक से दूर रह जाते हो। आसन का नाम है जानु शिरासन। क्या? चलिए 200 रुपए निकालिए। डॉक्टर रिसर्च फ्री में देता है क्या? लेकिन दादी आपसे ज्यादा होशियार थी, उसने के काम का किया था। इसे कहते हैं स्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव कर दे तो आपके लिए आवश्यक है, आप दुनिया के किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए है। शरीर किसका? ठीक कौन होगा? आप ठीक नहीं होगे तो ऊपर कौन जाएगा? ठीक हो जाओ या ऊपर चले जाओ, अमीर किसको बनना है? क्यों? बात समझिए जरा। आपका दिमाग आपके लिए सबसे बड़ा डॉक्टर है, लेकिन इस दिमाग को रेस्ट, चेंज और एनर्जी देने का, सप्लाई करने का काम आपको करना होगा, तो ही आपका दिमाग और ज्यादा प्रोडक्टिविटी, वर्क एफिशिएंसी बढ़ा पाएगा। आपके दिमाग को कंसंट्रेशन और क्रिएशन जैसी एक्सरसाइज देने के लिए संगीत का इस्तेमाल हो सकता है। क्या संगीत के सहारे हम खुद को रेस्ट दे सकते हैं? क्या संगीत के सहारे हम खुद को चेंज दे सकते हैं? क्या संगीत के सहारे हम खुद को एनर्जी दे सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो संगीत आपका अच्छा दोस्त बन जाएगा और अच्छी दवाई भी बन जाएगा। मुझे सिर्फ 6 लोग चाहिए, मैं एक छोटा सा डेमो देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से मैं फ्रेंडशिप कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मुझे कोई दोस्त आएंगे मदद करने के लिए थोड़ी देर? यस सर प्लीज। यस सर, एक ही आ गए, 6 चाहिए, 6। यस सर प्लीज। कुछ नहीं, मैं जादू नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ एक छोटी सी मदद है। आइए ना, आइए सर, आइए। यस सर, ये सर प्लीज प्लीज प्लीज। अरे आ जाइए, आ जाइए सर। यस सर, यस सर। अरे आज तो सातवां सुर आवश्यक है सर। सर 7 चाहिए, सारे गामा पाधा निसा। और 2 लोग भी आ जाएंगे तो भी चलेगा। मैं सिर्फ इन लोगों के साथ एक छोटा सा टास्क करने वाला हूँ। अभी जादू करूंगा और इनको गायब करूंगा, ऐसा कुछ दिमाग में मत रखिए। आपकी आवाज तो जाएगी नहीं, आप कितने भी बेसुरा गाएंगे तो भी चलेगा। हाँ, तो डोंट वरी अबाउट आपकी वॉइस कैसे जाएगी या फिर लोग हंसेंगे, कुछ दिमाग में मत रखिए। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ले मेरे यार। तेरा गम मेरा गम, मेरा यार तेरा गम, सुन ले मेरे यार। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। जान से भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। जग से दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, यार करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया
तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू वेरी मच। जरा बताइए, मजा बैठे रहेंगे आप तो क्या सेहत मिलेगी? देखिए, इन लोगों के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि ये लोग सामने आए, इसके लिए आपके लाइफ में खुशियों का ये मंजर आया। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। ऐसे टास्क आप ऐड कर सकते हो, ऐसे टास्क जो आपकी लाइफ में, आपके शरीर में कुछ अच्छे हार्मोनल चेंजेस करते हैं। आप सिटी, बीमार आदमी को बोलो सिटी बजाओ, वो बजाएगा क्या? उसको बोलो तालियां पीटो, बजाएगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए हार्मोनल चेंजेस होने जरूरी है। संगीत आपके लाइफ में, आपके जीवन में ऐसे मौके ला सकता है, छोटी छोटी बातों पे भी, छोटी छोटी बातों में भी ऐसे त्योहार बन सकते हैं। लेकिन संगीत को उस नजरिए से देखना चाहिए ना। हम सुबह से उठने के बाद शुरू कर जाएंगे, दोस्त दोस्त हमारा, क्या होगा अंदर हार्मोनल चेंज? जरा सोचिए, समझ में आना चाहिए हम लोग। आपको ना 200 रुपए की SSRI की ट्रीटमेंट देंगे ना, तो भी हार्मोनल चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन फिर सुशांत सिंह जैसे सुसाइड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सेरोटोनिन का बैलेंस करने के लिए अगर दवाइयों की आदत लग जाए तो फिर उससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये दिमाग का सेरोटोनिन बैलेंस करने के लिए एक तो 200 रुपए की दवाइयां खाओ, या फिर घर जाओ अपने माँ बाप को गले लगाओ। उसको हगिंग थेरेपी कहते हैं। आजकल दुबई, अमेरिका में इसके लिए भाड़े से माँ बाप लिए जाते हैं वृद्धाश्रम से, उनको बुलाया जाता है सैटरडे संडे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ उनकी गोद में जाके सोना है, सिर्फ उनके साथ प्यार से बातें करनी है। आजकल इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। अगर आप अपने माँ या पिताजी को 20 सेकंड के लिए गले लगाते हो तो 20 सेकंड में आपके अंदर इतना डोपामाइन हार्मोन भर जाता है कि आप 6 घंटे तक रिफ्रेश रह सकते हो। तो 200 रुपए की दवाई खाकर विद साइड इफेक्ट, 200 रुपए की दवाइयां खाकर आपको बैलेंस होना है, या माँ बाप को गले लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि माँ बाप आपके साथ रहते हो या फिर कहीं पे दूर। आप जाओ किसी वृद्धाश्रम में, उन लोगों के साथ माँ बाप जैसे बिहेव करो, उससे भी हो जाएगा। आप अपने दोस्त में बाप नहीं ढूंढ सकते, आप अपनी बीवी में माँ को नहीं देख सकते। हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारे लिए अगर दवाई बन जाए तो कोई भी बीमारी हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकती। जरूरी है कि हम किस प्रकार से रिश्ता बनाना चाहते हैं। संगीत के साथ रिश्ता जोड़ना है तो थोड़ा सा हमें अलग स्टेज पे कोशिश करनी चाहिए। अगर ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के साथ साथ एक संपूर्ण वेद संगीत के लिए लिखा गया, जिसको सामवेद कहते हैं, तो वो थोड़ी ना टाइम पास के लिए बनाया गया होगा। उसमें भी ताकत है आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस करने की, उसमें भी ताकत है आपको एक अच्छी लाइफ देने की। लेकिन जरूरत है कि आप किस स्टाइल से संगीत सुनना पसंद करते हो। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, केशवरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ये जो गाना भी बता रहा हूँ ना, ये बहुत सारे लोगों को वायर्ड होगा, पसंद होगा।
फिर क्या करते हैं ना, हम संगीतकार लोग बहुत होशियार होते हैं। हम क्या करते हैं, आपकी ये टेस्ट है, ये समझ में आया ना, तो इसी में गाने बनाने शुरू कर देते हैं। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी कर, ये वो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। आपको समझाने नहीं चलता उस संगीत का इस्तेमाल कैसे कर दिया है लोगों ने। आपने ये सुना होगा, दिगंबरा दिगंबरा शिवाद वल्लभ दिगंबरा, 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 दिगंबरा ये सुना है ना सबने? अभी इसी ट्यून पे एक नया गाना आया था, दिगंबरा दिगंबरा देवा देवा गजरा रे देवा रे करे दिगंबरा दिगंबरा शिवाद वल्लभ दिगंबरा, उसी गाने का है। संगीत का अध्यात्म का एक गहरा रिश्ता है। अगर अंदर से सुकून मिल जाए तो अपने आप हार्मोनल चेंजेस हो जाएंगे। हमें सिर्फ हमारी लाइफ में, हमारी पूरी जर्नी में इस संगीत को थोड़ा अलग तरीके से यूज करना है। आप खुद को रेस्ट देने के लिए, चेंज देने के लिए, एनर्जी देने के लिए अगर संगीत का इस्तेमाल करेंगे ना, तो अपने आप संगीत का भी मजा आएगा और सेहत भी मिलेगी। आपके रिश्ते हैं, दोस्तों के साथ अभी आप लोगों ने नाचा, आपकी फैमिली है जिसके साथ आप रहते हो, कभी एक सब लोग घर में मिलके भजन कर दो, कोई प्रेयर गा लो, कोई गाना गा लो, या फिर दोस्तों के साथ कभी गा लो। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से खिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम कोई नादा, भूलेगा दिल जिसे तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम कोई नादा, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा।
जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। कच्ची डोरियों से पैरों तूफान में, बाकी यारियों में कोई ना फासले, है नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी, दिल दिया गल्ला है, करांगे नाल नाल बहके, अख नाल अख मेरा के, दिल दिया गल्ला है, करांगे रोज़ रोज़ बहके, सच्चियां मोहब्बतां निभाके, सताए मैनू क्यों, रुलाए मैनू क्यों, मैं भी झूठी बोली रस तेरे साथ, दिल दिया गल्ला है, करांगे नाल नाल बहके, अख नाल अख मिला के। सगळी गाणी त्याच्यातच चालू आहे बरं, कारण काही वेगळं करत नाही राहते. होतं काय पण ही गाणी ऐकत असताना सॉरी हो क्या रहा है लेकिन सॉरी थोड़ा थोड़ा स्वल्प हो क्या रहा है कि जब हम ये गाने सुन रहे हैं ना तो अचानक से हम उस फ्लो में बहने लगे हैं. अगर हम घर में सबके साथ ऐसे गाने गाना कोशिश करें ना तो आपको समझेगा कि हम अंदर से जुड़ जाते हैं. अब आप हमें पहचानते नहीं, हम आपको पहचानते नहीं, लेकिन जब जब आप हमारे मुंह से गाने सुनते हैं आप हमारे से कनेक्ट करने की, ज्वाइन होने की कोशिश करते हैं. संगीत दिलों को जोड़ देता है और इसी के लिए जब पिक्चर में चलता है ना, हीरोइन को हीरो छोड़ के जा रहा है और गाना बज रहा है, तू न जा मेरे बादशाह एक वादे के, हमें लगता है कि हमारा ही बादशाह छोड़ के जा रहा है, इतने इन्वॉल्व होते जाते हैं. तो संगीत आपको कम्युनिकेट करता है. इतना ही नहीं, आप जब जाते हो किसी का इंटरव्यू लेने के लिए ना एज अ प्रेस रिपोर्टर, तो आप किस वॉइस टेक्सचर में किस टोन में बोलते हैं उसके हिसाब से सामने वाला अंदाजा लगा देता है कि इसको आंसर करना है कि नहीं करना है. आप डे टू डे लाइफ में संगीत का इस्तेमाल करते हैं. आप ही नहीं, आपका दिमाग भी, अंदर कौन सी नाड़ी में कौन सा रिदम चालू रखना है ये भी आपका दिमाग तय करता है. क्या हम संगीत के जरिए हमारे दिमाग का, हमारे फैमिली का आहार नहीं सुधार सकते? कुछ ऐसे गाने जो आपकी फैमिली में खुशियां लाते हैं, आपके अंदर खुशियां भर देते हैं, ऐसे गाने गाना क्या अपराध है? शास्त्रीय संगीत तो और आसान बात है. देखिए मेरी छाती में गोली लग गई, सुख की बात है कि दुख की बात है? दुख की बात है. लेकिन गोली खाकर मैं देश के लिए शहीद हो गया. फिर अभी तो एक सेकंड पहले दुख की बात थी, खुशी की कैसे बन गई? मेरी बीवी छोड़ के जा रही है मुझे हमेशा हमेशा के लिए, सुख की बात है कि दुख की बात है? हाँ, बहुत सारे लोगों के ऊपर चेहरे पे हंसी आ रही है. बीवी छोड़ के जाना अच्छी बात है बुरी बात है? चलिए, मेरी बीवी अच्छी है तो उसको वापस बुलाने के लिए मैं 2 लाइन गा लेता हूँ. अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे. अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे. दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय. मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए. कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, कोई शर्त होती नहीं प्यार में,
मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही गिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तो, कैसे लग रहा है आपको? वो वेदना संवेदना आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है? आपको एक ही टाइम पे सुख भी हो रहा है, यार अच्छा गा रहा है, ढाकना कहां से आए चश्मिश, लेकिन अच्छा गा रहा था यार, थोड़ा मजा आ गया। और कहीं से अंदर यार नहीं, ये बहुत ही सैड वाला सॉन्ग। तो एक ही टाइम पे सुख और दोनों दुख, ये दोनों का सम्मिश्र भाव होता है। जब हम कोई गाना गाते हैं ना, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, हम गाना तो दुख भरा गाते हैं, लेकिन उसी टाइम पे सुख का एहसास भी लेते रहते हैं। बात यहाँ पे चल रही है कि संगीत आपके दिमाग को एक बैलेंस देता है, जो किसी भी माहौल में न्यूट्रल रहने की आप में काबिलियत डाल सकता है। क्या हम संगीत के जरिए दिमाग को ये एबिलिटी नहीं दे सकते? देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अगर आपको आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की पढ़ाई में, आपके फैमिली के खुशी के लिए अगर संगीत का इस्तेमाल करना है, तो मैं आपको जरूर मदद कर सकता हूँ। बहुत सारे अलग अलग टाइप से, आप में से कितने लोग ध्रुपद सुनते हैं, पल्लवी, कीर्तनम, कितने सारे साउथ इंडियन भी म्यूजिक के फॉर्म्स हैं, त्रिवट, चतरंग, तराना, कितने सारे फॉर्म्स हैं। ये बच्चा जो बजा रहा है कवि से पखावज, ये जो पखावज बजा रहे हैं, तो आप तो सिर्फ मेरे गाने सुन रहे हैं, उसकी पखावज आपको कुछ अलग बता रही है। अगर वो बोलेगा धाग धिकड़ धाग धिकड़ कथा का दिखाना नगा नगा धागे धिकड़ धाग धिकड़ कथा का दिखाना था, और अगर वही बजाएगा यही बोल धाग धिकड़ धाग धिकड़ कथा का दिखाना नगा, गर्लफ्रेंड से बोलेगा तो ऐसे बोलेगा, बीवी से बोलेगा धाग धिकड़ धाग धिकड़ कथा का दिखाना नगा नगा धागे धिकड़, ये ऐसे चल जाता है। बोल वही है, लेकिन उसकी स्टाइल बदल जाती है ना। संगीत उसको कहते हैं पानी दे स्वल्प नीर और स्वल्प नीरा, इसमें क्या फर्क है? संगीत। आप एक दूसरे से कैसे बात करते हो, आप एक दूसरे के अलावा खुद से कैसे बात करते हो, ये भी संगीत है। संगीत अनाहत ध्वनि है। अगर हमें उस अनाहत लय को सुनना आ गया ना, तो हम दिमाग से स्टेबल हो सकते हैं। और एज ए डॉक्टर आपको बताता हूं, अगर आपका दिमाग स्टेबल है, अगर आप खुद पॉजिटिव हो, खुद नॉर्मल हो, तो सबसे दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर आप खुद ही हो। प्रॉब्लम यह है कि रोजमर्रा की ये जिंदगी हमें नॉर्मल बनने नहीं दे रही है, और फिर हमें संगीत के कुछ आसान पायदान को सुनना चाहिए अलग एंगल से। ये पखावज हम सुनते हैं, और आपको क्या सुनाई देता है वो भी चेक करते हैं। 3 इतना ही सुनाई दे रहा है, 1 2 3 4, लेकिन इस 4 बीट में वो क्या क्या बजा रहा है देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 4 3 4
अपने आप आ जाती है। हमें सिर्फ कैसे जुड़ना है, टाइम पास के लिए संगीत का इस्तेमाल करना चाहिए या अच्छी लाइफ जीने के लिए। अगर लाइफ जीनी है तो एक, मुझे पता है कि मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया है, 2 मिनट सिर्फ हम लास्ट वाला टास्क लेंगे। सभी लोगों को एक जगह पे खड़े होना है, अपने अपनी जगह पे। माइनर एफ माइनर, थोड़ा सा सर्कल बना के, एक सर्कल बना के खड़े रहिए। जो बाहर की बाजू में है ना, अंदर अंदर की तरफ आ जाइए। हाँ, सर्कल सर्कल बनाए, बीच में वो सब चेयर सब बीच में ले लीजिए। यहाँ पे आइए सर, यहाँ पे। देखिए सब लोग दोस्त हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हम लोग। मेरी जोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, मैं कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मेरी जोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, मैं कुर्बान मेरी जान मेरी जान। रमैया बता भैया, रमैया बता भैया, रमैया बता भैया, रमैया बता भैया, मैंने दिल किसको दिया, मेरे दिल किसको दिया। रमैया बता भैया, रमैया बता भैया, रमैया बता भैया, रमैया बता। ये खूबसूरत समा, यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, काला तेरे नाम का गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, और तूने नाम लिया कसौट मेरी। ओ मेरा पिया आया ओ राम, ओ मेरा पिया आया ओ राम, ओ मेरा पिया आया ओ राम, ओ मेरा पिया आया ओ राम। मेरा भारत आया, अपना बनाने आया, अपना बनाने आया हो, सारे के साथ लाया, सदा के साथ लाया, अपना बनाने आया हो। मेरा पिया 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 मेरा पिया घर आया ओ राम, मेरा पिया घर आया ओ राम, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। अरे मस्ती भरी रात है, सोनी कुड़ियों का भी साथ है, जीने का ये मजा, आगे डरने की क्या बात है। ना 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 नारे नारे नारे, ना 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 नारे नारे नारे, ना ना नारे। कौन आएगा डीजे को मदद करते, कौन आएगा डीजे को मदद करते। खुश रहिए, वही सेहत का सच्चा राज है। अभी बताइए मुझे, अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे कि नहीं हो रहे? तो संगीत का इस्तेमाल करना है कि किसी नर्स को मिलने जाना है? उसके साइड इफेक्ट और ज्यादा भयानक है। जरूरी है हम हंसी खुशी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के हाथ हाथ में लेकर अपनी जर्नी चलते रहे।
याद रखिए, दुनिया में किसी भी बीमारी पे परमानेंट इलाज कोई नहीं है। आप कितना जीते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं, कैसे जीते हो ये इंपॉर्टेंट है। काम करते रहेंगे और बुढ़ापे में जाके कुछ अध्यात्म करेंगे, इससे आपको लाइफ और सुकून नहीं मिलने वाला है। सेटिस्फैक्शन चाहिए तो आज अभी यहाँ पे खुश होने की कोशिश करिए। अगर इस तरीके से आसानी से छोटी छोटी बातों में हम खुशियां ढूंढ पाए ना, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत होगी, या फिर किसी डॉक्टर की जरूरत होगी। आप मेरे से फ्रेंडशिप करोगे सब लोग? तो मैं व्हाट्सएप पे, अगर आप मेरा नंबर सेव कर लेते हैं, तो मैं हर रोज आपको नई नई म्यूजिकल टेक्निक्स भेजता रहूंगा, थेरेपेटिक कई कुछ टेक्निक्स भेजूंगा जो आपको आपकी डेली लाइफ में नॉर्मल रखने के लिए मदद करेंगी। बेहतरीन रिश्ता दोस्ती का होता है। बचपन में जरा याद करके देखिए, कहीं पे जाके कांड करके आते थे, दोस्त कांड करते थे, गाली हम खाते थे। तो ये यही सब टॉपिक एक गाने में है। प्रीतिश जी प्लीज, प्रीतिश चौधरी प्लीज, उनके लिए तालियां बजाते हैं। आर्किटेक्ट है और गिटार पे मुझे साथ दे रहे हैं। नरेंद्र भोईर जो कैवन क्लैप बॉक्स बजा रहे हैं, सिविल इंजीनियर है। यस, आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं। आजा करे फिर कोई शरारतें, तू रोके मैं हार जाऊं। मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। मेरी जिंदगी सवारी जो गले लगा के, मैं था दिया फलक मुझे काट से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, मैं था दिया फलक मुझे काट से उठा के। यारा तेरी यारी हो मैंने खुदा माना, याद करेगी दुनिया अब तेरा मेरा याराना। अरे तेरे जैसा याद कहाँ, सुनो सुनो थोड़ा सा चेंज है। अरे के जैसा याद कहाँ, कहाँ ऐसा याद आना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर मेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर मेरा साथ ना छोड़ेंगे। थैंक यू मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। प्लीज आशीर्वाद और आपका सभी का सहयोग मुझे अपेक्षित है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आपको कुछ अच्छा संगीत सुनना है खुद को मोटिवेट करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए, तो मेरा नंबर आपके पास लेके रखिए। डीके मोटिव्स के जरिए हम मिलते रहेंगे, लेकिन हर रोज आपको एक ऐसा गाना मैं भेजते रहूंगा जो आपको सपोर्ट करता रहे। 83810 83810 192 192 59 59. ಇವರ ಈಗ ಈ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ವಿಶೇಷ ಐತೆ. ನಾನು ಅದ್ರಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತಿ, ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು ತಲೆ ಭಾಳ ನೋಸ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿರೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಡು ಹಾಕ್ತಾರ ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದು ಹಾಡಕ್ಕಿಂತ ತಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಯಾಕೋ ಭಾಳ ಇವತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ದಾಗ ಅದನ್ರಿ. आपके बारे में बोल रहा हूँ. डॉक्टर संतोष बोराडे, मुंबई.
ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ನೀವು ಕರೆಸಿ ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಏನಾರೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಕಿರ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹಾಕ್ತಾರ, ಔಷಧ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಾವ್ರ, ಔಷಧ ಟೈಪ್ ಅದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಕೈತಿ. मैं ये बता रहा हूँ उनको कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताएंगे तो आप यहाँ से कुछ वीडियो फोटो क्या आप गाने भेज देंगे, वो गाने में उनको अच्छा